problem. So till now you have seen our equation like this. Equation like this, like minimization of z equal to x1 plus x2. That means the objective function is in the linear format. Okay. So first thing that the quadratic function is example of the non-linear format. Some terms in the objective functions will be in the quadratic form. Just like I am writing an minimization of function f x equal to suppose 3 x1 square plus 4 x2 square plus 2 x1 x2 minus 2 x1 minus 3 x2 such that this is the objective function and these are the constant, and the constants are 3x1 plus 2x2 less than equal to 6, likewise x1 plus x2 less than equal to 2, where x1 and x2 both are greater than equal to 2. So here you can see that objective function is not in the linear format. Some terms are in the quadratic format. Okay, some terms are in the quadratic format, and you can say that objective function is a combination of some linear function and some non-linear function and some quadratic function also. So these kind of example, these kind of terms will be said as a quadratic programming problem. So how can you solve these kind of problem? This is the target. So first of all, I want to convert this problem into simple format. The objective function can also be written like minimization of f(x) equal to there are x1 and x2 two terms. So we can write this into matrix form, and because x1 and x2 are the two terms, therefore first of all I am going to write x1 and x2, and the coefficient of x1 is 3, the coefficient of x1 x2 if you break x1 x2, then you can write it as x1 x2 plus x2 x1. Okay, so every term, that means x2 and x1 both will get one coefficient. So 3 and 1 will be here, and likewise x2 square is having a coefficient as 4, so 4 will be here and 1 from here. Okay, so 2 will be divided into two parts, 1 will be here and 1 will be here, and because it is x1 square, so x1 x2 and one more x1 x2 is required because of the square term. When you multiply the matrix, then the square term should be obtained, therefore the two x1 x2 term should be there. And because you know that matrix multiplication operation can be done only when one of the row and one of the column will be same. So here x1 x2 will be written like this and x1 x2 will be written like this. So one of the term will be transpose of the other format. This is 3x1 square plus 4x2 square plus 2x1 x2. Now these two terms are remaining. So you can write the coefficient as minus, because minus sign is in both of the term. So for the sake of simplicity I have written it as positive sign, and again because x1 x2 are here, we can write it x1 and x2. Okay, so the same term can be written like this, and if you want to verify it, you can multiply it 3x1 and here you will get 3x1 plus 1x2, and again x1
plus x4, and when you multiply these terms with x1 x2, then you will get the same equation as written here. Okay, that means 3x1 square plus 4x2 square plus 2x1 x2 है ना, 3x1 and x1 multiplied, that means 3x1 square, and this will be 4x2, and 4x2 will be multiplied by x2, that means 4x2 square, and 1 x1 x2 and 1 x2 x1, and in this way you can get the same equation as written here. So it will be x transpose, it will be x, and suppose I am writing this term as q, so the equation becomes xt qx, plus suppose I am writing this term as ct. Okay, because I am writing this kind of term by the transpose sign, therefore it will be written like c of t, and x1 x2 is x, so the equation becomes as xt minimum of fx equal to xt qx plus ct x. Okay, so this term can be written like this. Now again you can also write the constant also. So there are two main equation, one is 3x1 plus 2x2 is less than equal to 6, other is x1 plus x2 is less than equal to 2. So we can extract the constant here. For example, x1 is having the coefficient as 3, so 3 1 and 2 1, 3 1 and 2 1. So the constant equation likewise can be written as such that 3 1 2 1 was the coefficient of what, of x1 and x2. Less than equal to, from the right hand side we can write 6 and 2, 6 and 2 where the right hand side, this is 6 and 2. So in this way we can write the same thing as here. This is a, this was already mentioned as x, and suppose I am writing it as b, so the equation is in the form of ax equal to b. It is very famous equation of the matrix ax equal to b format. Okay, all the linear equation can be written into this form, and in the last x1 x2 both should be non-negative term. So in the matrical form we can write the equation as x1 and x2 both should be non-negative, that means greater than equal to 0. So this can be written as x, capital X should be greater than equal to 0. So you have seen that we have written the same set of problem like this. So what should be the definition of this problem? Definition जो है quadratic problem की क्या बनती है? Definition is लिख लीजिए, a quadratic programming problem is a special class of non-linear optimization problem in which the objective function is quadratic and all the constants are linear. ठीक है, दोनों बातें हैं. यहाँ कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज क्वाड्रेटिक और जो कांस्टेंट हैं उनको लीनियर होना है. ठीक है, ये नहीं कि कांस्टेंट भी आपका क्वाड्रेटिक हो जाए या कुछ और हो जाए, कांस्टेंट मस्ट बी लीनियर. दोनों बातें सेटिस्फाई करेंगी. इन दैट केस ओनली द प्रॉब्लम विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट वेयर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि द क्यू, जो क्यू मैट्रिक्स आपकी बनी थी, इट शुड बी सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स. ये क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ. क्यू इक्वल टू क्यू आई जे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, है ना. सिमेट्रिक है तो रो कॉलम सेम रहना चाहिए. सिमेट्रिक
positive semi definite matrix. C1x belongs to Rn and B belongs to Rm, and A equal to Aij M cross N मैट्रिक्स. सेमी डेफिनेट. अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं, अब वो डिटर्मिनेंट उसका पॉजिटिव आता है, देन वी विल से द मैट्रिक्स एज पॉजिटिव डेफिनेट. ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स आपने यहाँ पर लिखा, जैसे मैं अपने वाले ही केस में जो मैंने ऊपर एक मैट्रिक्स लिखी हुई थी, मैंने इसी मैट्रिक्स को ले लिया. मान लिया मैं इसी मैट्रिक्स को ले रहा हूँ 3 1 1 4. तो 3 1 1 4 मैट्रिक्स अगर मैं लेता हूँ तो लेट अस चेक वेदर इट इज़ पॉजिटिव डेफिनेट और नॉट. 3 1 1 4. So first of all I want to check determinant of the order 1. So determinant of the order 1 means only the individual term will be checked. So if I have chosen the individual term, that means 3 1 1 4, every term individual is greater than 0, not equal to. Every term is greater than 0. Likewise, now I want to check determinant of the order 2. So 3 4 is 12, 12 minus 1, that means 11. So d2 value is 11, which is also greater than 0. Okay, d1 was 3, d1 was 3, and it was larger than 0. So if the value of determinant of a matrix is a positive number, then it will be said as a positive definite. Okay, and if its value is equal to 0 or greater than 0, that means both the cases can be formed. In that case, it can be said as a positive semi definite. That means in some of the cases its value will be 0, in some of the cases its value will be positive. In that case we can say that it is a positive semi definite matrix. That means a positive definite matrix will always be a positive semi definite, है ना, क्योंकि positive semi definite में कह रहा है कि 0 और 0 से बड़ा, और positive definite कह रहा है 0 से बड़ा, तो जो आपका 0 से बड़ा होगा वो 0 और 0 से बड़ा तो होगा ही, है ना. इसलिए ये आपका डेफिनेशन के अंदर आता है. ओके, यानी कि आई हैव चूजन द मैट्रिक्स फ्रॉम माई गिवन एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल दिस वाज द मैट्रिक्स Q, एंड दिस Q मैट्रिक्स is a positive semi definite matrix, and every equation is also forming and every equation is also satisfying the definition of the quadratic function. Therefore this example is an example of a quadratic function. Solving quadratic programming problem. The first method is graphical method. ठीक है, तो एक कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल यहाँ लिया जाए, ऐसा एग्जाम्पल लिया जाए जिससे कि एक ही बार में बात आपके समझ में आ जाए. तो आई एम टेकिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज मिनिमम x1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस 1 स्क्वायर, है ना. जानबूझ के सर्किल नेचर का ले रहे हैं ताकि बात जो है जल्दी समझ में आ जाए. ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये इसका नेचर जो है सर्किल टाइप का है. सच दैट ये कांस्टेंट मस्ट बी लीनियर फॉर्मेट. सो सपोज आई एम टेकिंग x1 x2 is less than equal to 2
and second is that x1 x2 both should be positive। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है कि दोनों ये x1 प्लस x2 को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, x1 और x2 यहाँ आपको लिखना है। तो x1 जब आपका 0 होगा तो x2 आपका 2 होगा, और x2 जब आपका 0 होगा तो x1 आपका 1 होगा। तो यहाँ पर हम एक कर्व को ड्रा कर दें, x1 x2 1 2 1 2, यहाँ x1 हो गया, यहाँ x2 हो गया। तो ये क्या हो गया, इस एक्सिस को यहाँ कट कर रही है लाइन, इस एक्सिस को यहाँ कट कर रही है। तो हमारा इस तरीके से लाइन हमारा ये बना, ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 2, ओके, एंड x1 x2 बोथ शुड बी पॉजिटिव। सो देयरफॉर आवर फिजिबल रीजन विल बी दिस वन। इसी फिजिबल रीजन में सोल्यूशन को लाई करना चाहिए, और सोल्यूशन इस तरीके से लाई करना है कि आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी मिनिमम, आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी मिनिमम। नाउ दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको लिख दिया जाए f(x) इक्वल टू, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन f(x) है एंड इट शुड बी मिनिमम। तो आओ चेक करें कि वैसे कहाँ पर ये मिनिमम होगा। तो अगर हम x1 की वैल्यू को 2 रख दें और ये x2 होगा ना, अगर हम x1 की वैल्यू को 2 रख दें, x2 की वैल्यू को 1 रख दें, यानी कि 2 1 पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, पूरे फंक्शन की वैल्यू ही 0 बन जाएगी, है ना। x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 1, तो 2 1 पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो 2 और 1, यानी कि इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। बट दिस पॉइंट इज नॉट इनसाइड द फिजिबल रीजन, दिस पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द फिजिबल रीजन, देयरफॉर दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल वैल्यू, है ना। 2 1 वैल्यू हालांकि मिनिमम फंक्शन की वैल्यू को दे रहा है, बट इट इज आउटसाइड ऑफ द फिजिबल रीजन, है ना, इसलिए ये आपका मिनिमम नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्यों? तो हमें कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो कि फिजिबल रीजन के अंदर हो और क्या हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू भी वहां पर मिनिमम हो। तो आप ध्यान से देखिए, तो फंक्शन इज ऑफ द नेचर ऑफ सर्किल, है ना, जिसका जो सेंटर है वो 2 and 1 है। तो अगर आप सर्किल को ड्रा करें तो दिस कुड बी वन ऑफ द सर्किल, दिस कुड बी अदर सर्किल, ये भी एक सर्किल आपका होगा। इस तरीके से देयर कैन बी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस टाइप के सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा विद डिफरेंट रेडियस, या तो ये होगा या ये होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लास्ट के 2 सर्किल मैंने ड्रा किए हैं, ये कुछ पोर्शन इनका जो है फिजिबल रीजन से गुजर रहा है, ठीक है। दीज आर द पॉइंट विच गो थ्रू द योर फिजिबल रीजन। इसी तरीके से ये वाला जो आपका है वो इसको टच कर रहा है, बाउंड्री लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। तो यही जो टच कर रहा है, तो दिस पॉइंट विल बी द ऑप्टिमम पॉइंट। इसी के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू आपकी मिनिमम होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे सेंटर के पास जा रहा है इसकी वैल्यू जो है मिनिमम की ओर शिफ्ट कर रही है ना। सेंटर के लिए वैल्यू इसकी 0 आ रही है फंक्शन की, और जैसे जैसे सेंटर से दूर आ रहा है फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी और जो फिजिबल रीजन में भी होगा, वो पॉइंट होगा जो कि इस लाइन से टच करके जा रही है, यानी कि जिस पॉइंट के लिए ये लाइन जो है टेंजेंट का काम कर रही है, यानी कि ये पॉइंट। तो मान लिया ये पॉइंट जिसके लिए ये आपका टच कर रही है, सपोज दिस पॉइंट इज x बार एंड y बार। मान लिया ये पॉइंट आपका क्या है, x बार एंड y बार है, जिसके लिए हमारा ये फंक्शन ऑप्टिमम वैल्यू को शो कर रहा है। क्लियर? अच्छा, अब हमें इसको सॉल्व करना है।
तो अब ये देखिए कि ये जो पॉइंट, ये जो लाइन आपकी है ये क्या है, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2। जो आपका ग्रेडियंट है वो कितना है, -1 है। ये जो आपकी लाइन है इसके लिए ग्रेडियंट कितना है, -1 है ना, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस से काट रहा है। तो इसका मतलब इसका ग्रेडियंट कितना है, 135 है। इसका मतलब -1, m की वैल्यू इसके लिए -1 है। और ये जो सेंटर से लाइन टच कर रही है, यानी कि जिसके लिए टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर इसका ग्रेडियंट -1 होगा तो वो लाइन जो कि इसके जो है परपेंडिकुलर है उसका ग्रेडियंट +1 होगा, ठीक है। उसका ग्रेडियंट जो है कितना होगा, और इस चीज़ को इससे भी प्रूफ किया जा सकता है कि ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, दोनों पॉइंट का डिफरेंस y और x में, यानी कि y बार -1 अपान x बार -2, y बार -1 अपान x बार -2, दिस शुड बी इक्वल टू 1। अभी मैंने इस चीज़ को समझाया। और अगर ये आपका इक्वल होगा, दिस इम्प्लाइज दैट y बार -1 इक्वल टू x बार -2, और वी कैन राइट द इक्वेशन एज x बार minus y bar equal to 1. Okay, so in this way we have got two equation. One equation is this and other equation is this. This is equation number 1, this is equation number 2. If you solve these two equation, that means x1 plus x2 equal to 2 and x bar minus y bar equal to 1, then we will get the value of x1 and x2, for which the value will be optimum value, for which the objective function value will be the minimum value. So if you solve these two equations, then 2 of x1, if you add these two equations, then x2, या मैंने x2 लिख दिया है, it should be, एक्चुअली x2 इज y है ना, तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि दिस इज लाइक x प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई है ना, क्योंकि x1 को मैंने x माना है, x2 को मैंने y माना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 कर लो। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 को अगर आप सॉल्व करें तो दिस इक्वेशन विल बिकम 2 ऑफ x1 इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर x1 इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये तो यानी कि ये जो x बार की वैल्यू कितनी हो गई, x बार की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। एंड इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x बार इनटू आइदर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, देन y बार इक्वल हाफ। इस तरीके से आपने देखा कि यू कैन सॉल्व दिस बाय द ग्राफिकल मेथड। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से आप बड़े आसानी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम की बात यह है कि यू कैन अप्लाई द ग्राफिकल मेथड ओनली फॉर द 2 वेरिएबल, यानी कि x1 x2 टाइप का वेरिएबल होगा तब तो सॉल्व कर सकते हैं, बट इफ there are more than 2 variable, then it will be very difficult to apply the graphical method in that case. Okay, for 2 variable you can solve the equation very easily, but if the number of variable will be going up, then the graphic application of graphical method will be very tough and it is about to impossible to solve by a person. So we will not apply for more than 2 variable. We will not apply the graphical method for more than 2 variable. So what we will do for that case, we will apply the KKT, Krusk, Kuhn and Thakur. Yeah. Second method by applying Krusk, Kuhn and Thakur method.
KRUSH है ना, आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो। कुन, इसमें से क्रस ने जो आपका रिसर्च पेपर लिखा था पहले लिखा था। कुन जो है लाइब्रेरी में गए हैं, उन्होंने जो है क्रस का पेपर पढ़ा है, उनको बड़ा पसंद आया है। ठक्कर के साथ मिल करके जो है इन लोगों ने इसी जो है रिसर्च को आगे बढ़ाया है। इस तरीके से जो एक मेथड जो है निकल के आया है, दैट मेथड वाज नेम्ड एज क्रुस्कन एंड ठक्कर मेथड, KKT मेथड। लेट अस टेक एन एग्जांपल। QPP problem can be written in the form as minimum of fx equal to xt qx plus ctx, है ना। इसको मैंने दिखाया था ना किस तरीके से कन्वर्ट किया है, such that ax is less than equal to b and x larger than equal to 0. The same equation in the format, that means these two equations can be written ax माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि जो है KKT साहब कहते हैं कि राइट साइड में 0 लिखो, उन्हें राइट साइड का 0 बड़ा पसंद आता है। माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि A क्या है, A इज ए मैट्रिक्स एंड हियर X इज आल्सो मैट्रिक्स, ओके। तो इन द फर्स्ट इक्वेशन इट इज एक कम्बिनेशन ऑफ m नंबर ऑफ इक्वेशन, है ना। क्योंकि मैट्रिक्स में आपने देखा था x1 x2 xt टाइप के आपके वेरिएबल्स थे और इसी तरीके से a जो है उनके कोफिशिएंट थे। तो मैंने अभी बताया कि दो अगर आपके वेरिएबल हैं तो आप ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। KKT मेथड में आपको बता रहा हूँ, जाहिरी तौर से नंबर ऑफ वेरिएबल इज लार्जर देन द 2 वेरिएबल्स, तो 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं। तो हम इनको मान ले रहे हैं कि देयर इज ए टर्म u जिसमें कि नंबर ऑफ इक्वेशन आपके m हैं और इसमें एक v वेरिएबल हम इंस्टॉल कर रहे हैं और इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन आपके n हैं, ठीक है। तो इस तरीके से m और n स्पेस में ये आपके रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर u और v क्या है, दीज आर द KKT मल्टीप्लायर, where u and v are the KKT multiplier, ये आपके KKT मल्टीप्लायर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से KKT मल्टीप्लायर जो है टोटल कितने हो गए, यहाँ m है यहाँ n है, सो द टोटल नंबर ऑफ KKT मल्टीप्लायर विल बी m plus n। सो द टोटल नंबर ऑफ KKT मल्टीप्लायर विल बी m plus n, है ना। इस तरीके से ये आपके टोटल नंबर ऑफ KKT मल्टीप्लायर हो गए। तो KKT कंडीशन अगर आपने जो है पढ़ा होगा तो इसका एक स्पेशल इक्वेशन है। इक्वेशन को अगर जो मिनिमा करना हो तो उसके लिए उसका डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ भी ये एक फंक्शन है and if you want to minimize this function then its derivative should be equal to 0, and because there are so many terms therefore you should be having the partial derivative in this case. So the partial derivative of function fx should be equal to 0 in this case, okay. Now by applying the KKT method the partial derivative of this would be added by another function by applying the Lagrangian multiplier, कि partial derivative of fx plus summation from I equal to 1 to m, क्योंकि यहाँ पर u आपका m स्पेस में है, लैम्डा i है ना। हर अभी मैंने बताया हर इक्वेशन के लिए एक लैम्डा अलग रहेगा। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द Lagrangian मल्टीप्लायर एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g g क्या है, g ये जो कांस्टेंट है इनका इक्वेशन है ना। जैसे यहाँ पर ax माइनस बी ये क्या हो गया, ये आपका g1 टाइप का हो गया। इसी तरीके से g2 टाइप का क्या हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपका g1 और आपका g2 है। तो यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो
ये आपका G1 एंड G2 हो गया एंड देयर आर सो मेनी इक्वेशन बिकॉज यू कैन सी दैट ax minus b is a combination of m number of equation, likewise x is a combination of m number of equation. So there are so many equations are there. So all the equation in combination इस टर्म है gix. ठीक है, gix हमने एक साथ लिख दिया जहाँ पर i की वैल्यू इज वेरिंग फ्रॉम 1 to m and for every g there is a separate Lagrangian multiplier lambda I. Okay, so lambda 1 g1, lambda 2 g2, lambda 3 gt, and every g will be calculated by a partial derivative, है ना, क्योंकि सभी को हमको जो है मल्टीप्लाई करके जीरो करना है so that we can get the optimum value. तो it should be equal to 0. अगर जो है दोपहर वाला लेक्चर आपने किया होगा तो ये आपके समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने किया है. वेयर लैम्डा आई जी आई एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जी आई एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड लैम्डा विच इज लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो इस तरीके से ये आपने यहाँ पर लिख दिया है. ठीक है, और यहाँ पर आपको पता ही है ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू कितनी होगी डेल्टा की. डेल्टा को कैसे लिखते हैं, डेल्टा ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू होगी डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा x1 डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा x2, है ना. इस तरीके से डेल्टा की वैल्यू होती है. अगर मान लो x1 x2 जो है आपके मान लो n टर्म्स हैं तो इट शुड बी डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा xn. इस तरीके से जितने भी आपके टर्म होंगे सबके जो है करस्पॉन्डिंग अलग अलग जो है पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर आपको करना होगा, है ना. अगर समझ में ना हो तो एक छोटा सा एग्जांपल में, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. मिनिमम ऑफ f इक्वल टू 3x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस 4x1 माइनस 2x2, ऐसे ही कुछ लिख दिया मैंने. सच दैट इसमें मैंने दो ही वेरिएबल लिया है ताकि बहुत ये आपका टफ ना हो जाए, जल्दी से करना भी है. तो x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 माइनस x1 लेस देन इक्वल टू 0. सपोज माइनस x2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 0. सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन बाई u, दिस इक्वेशन बाई v1, दिस इक्वेशन बाई v2 एज आई ऑलरेडी told you. So if you take the partial derivative, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या है, ये f है और हमें इसके मुताबिक यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है ना, क्योंकि यहाँ पर जो डेफिनेशन आपकी है नीचे हाँ यहाँ इक्वेशन में आप देख रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है ना. तो यहाँ पर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी कि क्या होगा डेल्टा एफ क्या होगा, डेल्टा एफ यानी एक बार x1 के साथ इसका जो है आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, एक बार x2 के साथ निकालना है. दो ही वेरिएबल हैं तो हमें, तो अगर x1 के साथ पार्शियल डेरिवेटिव निकाला तो ये हो गया 6 ऑफ x1 और कहीं x1 है और कहीं x1 हाँ यहाँ है तो ये हो गया प्लस x2 और कहीं x1 है हाँ यहाँ है, ये हो गया -4. तो ये हो गया डेबा एफ अपॉन डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा x1 हो गया. इसी तरीके से दूसरा करना है डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा x2. तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 4 ऑफ x2 हो गया और यहाँ पर x2 हो गया तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x1 और यहाँ पर -2. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका डेल्टा. तो इस तरीके से आपने देखा कि डेल्टा एफ आपने यहाँ पर निकाला. अब यहाँ टेकेटी वाले इक्वेशन में और क्या है, सिग्मा ऑफ लैम्डा डेल्टा ऑफ जी आई. तो अब हमको जी आई यहाँ पर निकालना है. तो जी आई के लिए आपको क्या करना होगा, इसी इक्वेशन में जो भी आपके कांस्टेंट वाले इक्वेशन है ना, यहाँ कांस्टेंट के कितने इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, 3 इक्वेशन दिख रहा है x1 प्लस x2. तो सबसे पहले 6 को हमको बाएं हाथ पर कर लेना है क्योंकि वही आप G1, G2, G3 जो है तभी आप इसको कह पाएंगे, है ना. तो 6 को आपने यहाँ किया और इसी डेल्टा एफ में आपको इसको ऐड करना है. तो
अगर ये आपने कैलकुलेट किया, यानी कि आपको क्या करना है, डेल्टा एफ प्लस सिग्मा ऑफ लेमडा डेल्टा ऑफ जी आई टाइप का कुछ आपको लिखना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखे रहिए। तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है 6x1 प्लस x2 माइनस 4, और इसी तरीके से 4x2 प्लस x1 माइनस 2, ये हो गया आपका डेल्टा एफ हो गया। और लेमडा यहाँ पर आपको जोड़ना है, तो यहाँ पर लेमडा के लिए पहले हम यहाँ पर यू को जोड़ रहे हैं। तो यू को जब आपने जोड़ा तो यहाँ पर x1 x2 के कोफिशिएंट क्या हैं, 1 and 2 हैं, तो यहाँ पर लिख दिया 1 and 2 लिख दिया। इसी तरीके से v1 में 1 है, लेकिन x2 का कोफिशिएंट 0 है, तो यानी कि v1 में आप लिख देंगे -1 and 0। इसी तरीके से v2 में आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट 0 है, x2 का -1 है, तो 0 and -1। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, इक्वल टू 0 भी तो है, तो इक्वलिटी के इधर क्या होगा, 2 वेरिएबल हैं, तो 0 0 यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरे जो है केकेटी वाले इक्वेशन को आप लिख सकते हैं ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आप चाहें तो इसको ब्रेक कर लें, तो ये आपका नेचुरल इक्वेशन टाइप का आ जाएगा। चलिए, तो ये मैंने शॉर्टकट में आपको समझा दिया है किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम इसी के आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेंगे, तो हियर यू कैन राइट द सेम इक्वेशन एज, इक्वेशन क्या था एक्चुअल में, इक्वेशन आप याद करिए। तो इक्वेशन आपका था f वाला, f क्या था आपका, fx था, याद करो, x ट्रांसपोज q x, यही था ना, सी टी x टाइप का था कुछ। तो इस टाइप का इक्वेशन आपका था। अब आपको इसका क्या निकालना है, ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड जब आप इस इक्वेशन का निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका x स्क्वायर टाइप का है, क्योंकि x मैट्रिक्स आपकी क्या है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज और ये दोनों आपका सेम ही होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो जब आप इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसमें ये इक्वेशन आपका आएगा ये वाला फॉर्मेट, 2 ऑफ एक्स टी क्यू, है ना, एक्स स्क्वायर टाइप का बन जाएगा ना, क्यू ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप का, तो 2qx, तो 2qx मैट्रिक्स का इसी तरीके से होता है। और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यू विल गेट सी टी, ठीक है। और अब इस पार्ट में आइए, इस पार्ट में यानी gx वाले पार्ट में। तो gx वाले पार्ट में क्या है आपका, तो gx वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखिए ऊपर वाला इक्वेशन, तो ऊपर वाले इक्वेशन में ऊपर वाले इक्वेशन में जो आप ठीक से काम नहीं कर रहा है, ax माइनस बी इक्वल टू 0 एंड x इज लार्जर देन इक्वल टू 0, ax माइनस बी था, ठीक है। तो g1 क्या हो गया, ax माइनस बी टाइप का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले में u जोड़ते हैं और सेकंड वाले में v हम जोड़ेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट, हाँ दिया तो है यहाँ पर, देखो फर्स्ट वाले में हमको u जोड़ना है एज ए मल्टीप्लायर, और सेकंड वाले में v को एज ए मल्टीप्लायर जोड़ना है ना। क्योंकि जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले में u, सेकंड वाले में v1 जोड़ा है। तो अब इसी को जो है जनरलाइज फॉर्मेट में हम कर रहे हैं, सेम काम को हम जनरलाइज फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो हमने डेल्टा ऑफ f निकाल लिया, और अब हमको ये वाला काम करना है। तो इन द फर्स्ट पार्ट इट इज ut ax माइनस b
एंड सिमिलरली वी टी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से कैलकुलेट हो गया वेयर ए एक्स माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x1 is non-negative, u is non-negative, v is non-negative, every term is non-negative. So in this way you can apply the KKT condition like this. Then this equation now will be a combination of 4 equations. This equation will be a combination of 4 equations. C we have to calculate the transpose of this full equation. So if we calculate the transpose of this full equation, then it will be like 2q of x, because x is a symmetric method matrix, x is a symmetric matrix, so xt and x both will be same. Likewise C is also a symmetric matrix, so ct and c will be same, so we can write it as like this. Again if we break this part, then we will get if we break this part and take the transpose of all the term, we will get at u and v of I equal to 0, where ax minus b is less than equal to 0. So we can add a slack variable here, okay, because left side is less than the right hand side, therefore if we add some slack variable, then both sides will be equal. So ax minus b plus slack variable equal to 0, or this can be written as ax minus b इक्वल टू माइनस स्लैक वेरिएबल। ठीक है, स्लैक वेरिएबल यानी कि जो है बैलेंस करने के लिए, जैसे 2 किलो आलू आप लीजिए, तो अगर एक साइड का घट रहा है तो वहाँ पर स्लैक वेरिएबल डाल करके बराबर कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्लैक वेरिएबल आपका यही काम होता है। नाउ थर्ड सेकंड थिंग इज ut in place of ax minus b, here in place of ax minus b you can write as minus x। ठीक है, तो हम इसके प्लेस पर जो है माइनस s लिखने जा रहे हैं। तो अगर हम इसके प्लेस पर माइनस s लिख रहे हैं, चूँकि ये पूरा इक्वेशन 0 है, ये चीज़ 0 नहीं है, इसलिए ये चीज़ आपकी 0 होगी। ठीक है, तो अगर ये पार्ट आपकी 0 नहीं है, तो ये पार्ट अगर आपका 0 होगा, सॉरी, चूँकि ये पूरा इक्वेशन आपका 0 है और सारे टर्म इसके क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो अगर सारे टर्म किसी चीज़ में पॉजिटिव हैं, जैसे मान लो हमने लिखा a प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ a और b दोनों आपके जो है नॉन नेगेटिव टर्म है। तो अगर a और b दोनों आपके नॉन नेगेटिव टर्म है, जाहिर बात है कि a और b दोनों अलग अलग 0 होंगे। तो वही बात यहाँ पर भी है, यहाँ सारे टर्म आपके क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो सारे टर्म अगर आपके पॉजिटिव हैं, इसका मतलब सारे टर्म अलग अलग आपके 0 होंगे। यहाँ 2 टाइप के टर्म हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, जस्ट लाइक ए एंड बी। तो सेकंड टर्म भी आपका 0 होगा। तो इसमें क्या है, ए एक्स माइनस बी है, तो ए एक्स माइनस बी यहाँ अभी आपने कैलकुलेट किया, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। देयरफॉर इन प्लेस ऑफ ए एक्स माइनस बी आई एम राइटिंग माइनस एस माइनस Vtx equal to 0. So now we have got here Uts plus Vtx equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही बात आ गई जो कि यहाँ बात आई थी कि एवरी टर्म इन दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव टर्म। ठीक है भाई, s क्या है, पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है, ut पॉजिटिव है, vt पॉजिटिव है, सब तो पॉजिटिव यहाँ भरे हैं, लेकिन इनका सम 0 है, यानी कि हर एक टर्म अलग अलग आपका 0 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट uts इक्वल टू 0 एंड लाइकवाइज vtx इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों टर्म अलग अलग आपके 0 हैं। अच्छा, uts में क्या है, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ इक्वेशन बिकॉज द वैल्यू ऑफ u इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to m, है ना,
यहाँ देखो मैंने इस चीज़ को बताया हुआ है। u की वैल्यू x से m तक वेरी कर रही है और v की वैल्यू यहाँ देखो u की वैल्यू इज इन द m स्पेस एंड v की वैल्यू इज इन द n स्पेस, यानी कि 1 to m u की वैल्यू है, 1 to n और आपकी v की वैल्यू है। तो इस तरीके से क्या है कि देयर आर m नंबर ऑफ इक्वेशन इन दिस एंड देयर आर n नंबर ऑफ इक्वेशन इन दिस 1 to n and every equation individually will be equal to 0. So यानी कि हम इस चीज़ को लिख सकते हैं u1 s1 plus u2 s2 plus u3 s3 plus um sm equal to 0 because its value is ranging from 1 to m, and likewise this equation can be written as v1 x1 plus v2 x2 plus vn xn equal to 0. इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन क्या हो गए लिखे जा सकते हैं, यानी कि हर एक इक्वेशन इंडिविजुअली आपका 0 होगा बिकॉज एवरी टर्म इन दिस इक्वेशन इज ए पॉजिटिव टर्म, देयरफॉर एवरी टर्म इंडिविजुअली विल बी इक्वल टू 0, यानी कि u1 s1 अलग से 0 होगा, u2 s2 अलग से 0 होगा, यानी एवरी टर्म इन दिस इक्वेशन individually will be equal to 0. So we can rewrite the same equation as ui si equal to 0 for all I from 1 to m, and similarly vj sj equal to 0 for all j रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, है ना, अलग अलग ये सारे, क्योंकि सारे के सारे टर्म जो है पॉजिटिव टर्म है, नॉन नेगेटिव टर्म है। तो इस तरीके से हम पूरे इक्वेशन को केकेटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कई यहाँ पर इक्वेशन आ गए हैं, तो बेसिकली याद करने के लिए हम आपको बता दें कि पूरे इक्वेशन को हम सिंपली एक मैट्रिक्स में लिख दें। यहाँ पर पहला इक्वेशन जो आपका बना था वो था c प्लस 2qx प्लस 80u माइनस वी इक्वल टू 0। दूसरा जो s के फॉर्मेट में स्लैक वेरिएबल आपने जोड़ दिया था a x plus s equal to b. The third equation is uj sj equal to 0, ये वाला, और फोर्थ वाला ये हो गया vi xi, ये x equal to 0 from 1 to m and here फ्रॉम 1 to n। तो इस तरीके से ये चार इक्वेशन में हम इसको लिख सकते हैं। एंड अगर हम इन चारों इक्वेशन में कोफिशिएंट लिख दें तो हम इसको बड़े सिंपल फॉर्मेट में, इसमें क्या है x है, ठीक है, तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया 2q हो गया, 2q। दूसरा वेरिएबल अगर हम u को ले लें तो u का कोफिशिएंट क्या हो गया 80 हो गया। तीसरा वेरिएबल हम v को ले लें तो v का कोफिशिएंट कितना हो गया -1 हो गया, लेकिन चूंकि ये मैट्रिक्स है तो हम इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे -i, और चूंकि हमको पता है कि v की रेंज कितनी है n है, इसलिए यहाँ पर i n लिख दिया, ठीक है। और चौथा यहाँ पर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर 0 लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ax प्लस s, तो इसमें x का कोफिशिएंट a है तो हम यहाँ पर a लिख देंगे, u और v तो है नहीं इसलिए ये आपका 0 हो गया, ठीक है। कांस्टेंट यानी यहाँ पर चौथा वेरिएबल s हम मान रहे हैं ना, इसमें चौथा वेरिएबल नहीं था इसलिए 0 लिखे थे, यहाँ फोर्थ वेरिएबल है तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर सिमिलरली i हो गया। एंड बिकॉज द वैल्यू ऑफ s इज ऑफ द ऑर्डर m, देयरफॉर इट विल बी लाइक दिस। इस तरीके से ये मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पर किन किन वेरिएबल के लिए हमने लिखा है, हमने लिखा है x के लिए, u के लिए, v के लिए और s के लिए। तो इस तरीके से ये पूरे को हम, एंड दिस विल बी इक्वल टू -c, क्योंकि अगर c को इस साइड में करेंगे तो इट्स वैल्यू विल बी -c, और यहाँ पर b आपका है। तो इस पूरे इक्वेशन को सिंपली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये हो गया कांस्टेंट्स, नीचे के दो टर्म आपके कांस्टेंट हो गए। तो अब इसको ऊपर जाओ भाई,
हाँ, तो ये जो है कांस्टेंट के फॉर्मेट में हम यहाँ पे लिख देंगे सच दैट यू जे एस जे इक्वल टू 0, जे will be ranging from 1 to m. Similarly, vi xi equal to 0, I is ranging from 1 to n. ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि किटी कंडीशन से हम प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उतनी बड़ी प्रॉब्लम को हमने सिंपल मैट्रिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके रख दिया और इस तरीके से ये आपका जो है सिंगल डायमेंशन की प्रॉब्लम बन गई। तो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।